शार्क्स, एक न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। मालिश करते हैं, उनके स्किन के लिए स्पेशलाइज्ड क्रीम्स यूज करते हैं। बट व्हेन दिस बेबी टर्न्स 4, वी आर लाइक अभी केयर करने का स्टेज तो गया। एंड बच्चों के लिए फिर अपने फैमिली के जनरल स्किन केयर दे देते हैं, नहीं तो वो ही बेबी प्रोडक्ट्स यूज करना कंटिन्यू करते हैं। बट अडल्ट प्रोडक्ट्स उनके लिए बहुत हार्श होते हैं एंड बेबी प्रोडक्ट्स बहुत माइल्ड। मोस्ट ऑफ द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कॉल्ड एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज, इनके लॉन्ग टर्म यूज से पॉलिसिस्टिक ओवरीज, अर्ली प्यूबर्टी जैसे हार्मोनल इश्यूज हो सकती है एंड दे कैन इवन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। पर्सनल केयर इंडस्ट्री में इसी गैप को हमने आइडेंटिफाई करके बनाया टिकिटोरो। वनक्कम शार्क्स, आई एम प्रसन्ना वसनाडू फ्रॉम चेन्नई। रिसर्च ने हमको बताया कि किड्स एंड टीन्स एक ही प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने बनाया टिकिटोरो किड्स फॉर एजेस 4 to 10 एंड टिकिटोरो टीन्स फॉर एजेस 11 to 16। हमारे सारे फॉर्मुलेशंस go through multiple iterations based on the feedback from our parent focus group। हमारे हर प्रोडक्ट dermatologically tested and pediatrician verified है। They are certified for safety by an international organization, and all our claims are verified and validated by a third-party lab. And I'm so proud to share that हमने 1 लाख से ज़्यादा परिवारों का प्यार जीता है। Right now, we operate from our website and e-commerce channels. So Sharks, I invite all of you to join me, and my ask for today is 25 lakhs for 0.5% equity. Wow. Tikitoro might not be the mother of all products, but it's certainly a product for all mothers. Well, even all fathers too, for your kids. Wow. Prasanna, vanakkam. Vanakkam. Lovely to have you here. Thank you. And sounds like a very exciting set of products. पर उसके पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। I am a mother to a 10-year-old son. मैंने 7 साल का infertility treatment के बाद I had a baby. And I went through hormonal imbalances and उसी समय पता चला ये endocrine disruptors क्या-क्या harm करता है body को। Having gone through it, I did not want my son to go through it. I needed something which was safe and convenient and effective. And that is why Tikitoro came to be. 2015 से 20 में बहुत सारी माँओं ने अपने बच्चों की स्किन इश्यूज को देखते हुए बेबी फोकस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। Correct. एंड काफी सारे जो क्लेम्स हैं जैसे पैराबेन, सल्फेट फ्री, अल्कोहल फ्री, वो सब क्लेम करते हैं, तो आपको उन सब के प्रोडक्ट्स नहीं जचे? Those were all baby products made for newborn skin. Right. But this is especially for kids who have outgrown baby products and still are too young for adult products. I didn't find anything for that older kids age group, and that is how Tikitoro came to be. Prasanna, actually the Sebamed lotion, it sells entirely on pH 5.5. Yes. वो उनका hook है। Minimalist का hook है own manufacturing। वैसे आपका hook क्या है? We are all pH balanced, the same 5.5 pH है. And we have expert formulators on board. I am not a formulator. आपका background क्या है education तो background? पहले मैंने इंजीनियरिंग किया Okay. और उसके बाद मैंने MBA किया in marketing from Symbiosis Pune. Oh. And after my son was born, I found a purpose. I became a certified parent educator. Before that, for 14 years, I was in a full-time job, which was like, you know, the 24/7. I learned multitasking. I learned like everything, like delegation, whatever. क्या जॉब में थे अब? I was a full-time homemaker. Oh, nice. It's a very important job. Exactly. I'm so glad कि आपने ये मुद्दा उठाया है, because lot of times मैंने देखा है कि working women जो होती है वो होम मेकर्स को थोड़ा ऐसे डिसरिगार्ड या डिस्काउंट करते, पर आई टेल यू यू आर सो राइट कि होम मेकर्स का एक तो अनपेड, अंडर अप्रिशिएटेड जॉब, और उसके ऊपर जो केओस वो लोग मैनेजमेंट करते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस पॉइंट। Yes, Prasanna, can we see the products? of course. I'll give you.
Actually, our kids shampoo is our best seller. Kids. The body wash. Thank you. Thank you. Prasanna, Yes. इनके prices क्या हैं? For the shampoo, body wash is 640 rupees. The body lotion is 740. आपने जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी में है? Yes. आपने काफी सारे लाइक सेंटिनेला एशियाटिका ग्लाइसिनेट इंडिका फ्रूट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स Yes. ये काफी पहले आ रहे हैं आपके उसमें तो आप एक्चुअली ये सब 2-2 3-3 4-4% की मात्रा में डाल रही हैं इन प्रोडक्ट्स में Yes. बिकॉज मैंने बहुत रेयरली देखा है मैं सारे प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशंस देखती हूँ जनरली ये 4-5 जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मार्केटिंग डोज पे आते हैं Exactly. उनको 0.1% में डाला जाता है और उनको राइट एंड में लिखा होता है क्योंकि इट इज जस्ट कॉल्ड अ मार्केटिंग डोज Exactly. एंड देयर इज नो रियल वैल्यू तो अगर आपको सेंटिनेला एशियाटिका अगर डालना है 2-3% तो बहुत महंगा पड़ता है तो आर यू आर एबल टू पुट दैट Yes, we are. Because see, end of the day, as I said, I'm a mother and I just want the best for the kids. And that is what I'm really, really passionate about. पर आपने पैकेजिंग में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया मतलब विद सच हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स दे नॉट दिस इज नॉट डूइंग जस्टिस टू योर ब्रांड I agree with you. And by the way, these are not stock bottles. हमने molds पर invest किया. We had few shapes and we asked the kids. And this was easier for them to hold. The pump was also, it was stable when you keep it in the toilet. So it was all made for functionality and convenience. आपने कब शुरू किया? We launched Tikitoro in December of 2021. क्या ट्रैक्शन रहा है हमारा अभी तक? कितना रेवेन्यू कर रहे हैं हम? Year 1 was only 3 months, which was like 6 lakhs revenue. The year 2, we did about 2 crores revenue. The Wow. year 3, that is FY24, was 8.2 crores revenue. Wow. And now, year to date, we have already done over 8.5 crores. Wow, well done. Very good, very good. And how much are you going to do? 17 crores. ओह माय गॉड बॉटम लाइन क्या थी? We are not profitable yet. We are CM2 profitable. नहीं, अभी जैसे FY24 में हमने 8 करोड़ का रेवेन्यू किया था, कितना लॉस था हमारा? EBITDA was minus 49%. अभी इस साल कितना लॉस होगा हमारा? As of now, it is minus 20%. तो इस साल भी 3.5 करोड़ का लॉस होगा तकरीबन। Yes. और आपने फिर इसका मतलब कुछ कैपिटल रेज किया होगा? No, it's fully we have invested. Really? Yes. ये सारा पैसा आप घर से लगा रहे हैं? आपने 8 करोड़ रुपया about $1 million अभी तक लगा चुके हैं आप घर से। Yes, इसमें हम लगा चुके हैं. And how are you funding this? It is mine and my husband's savings, family savings. Good for and, you. Yeah. And we have a 2 crore of bank overdraft. ये समझते हैं कि हमारा इतना लॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। Okay. Our COGS is 31% and inward logistics, so gross margin comes to 68%. The CM1, where you take away the market places, the commissions, your last mile delivery, and you remove the warehouse charges and all that, it comes to 48%. हाँ जी। And after the marketing spend, the CM2 is about 5%. And then comes our fixed costs, our team, our other charges, everything. And that's why our EBITDA is minus 20%. Generally, fixed costs at this scale इतना बड़ा नहीं दिखता है। 25% मतलब आप 40 बोल रहे हो लाख। 40 लाख रुपया महीने का। That's what's killing you. Can you explain that breakup? Okay, so we have team of 20. So the salaries come to about 11% goes into that. दीजिए सैलरीज कितना है 20 लाख Yes. About 12 to 14 would go to my consultants and agencies. बाकी 6 लाख? We have travel. My team has to travel to the factories, the QC, the other things. Okay, thank you. प्रसन्ना, Vanita, आपको sorry, ऐसे go लगता है कि हम ये स्टार्टअप बना रहे हैं? I'm actually building a bigger brand, and this is in the startup stage right now. किसी भी स्टार्टअप की जर्नी में हम परफेक्शन इतनी जल्दी नहीं चेज कर सकते। पहले हमें प्रोग्रेस दिखाना होता है। Correct. थोड़ा वो रोल्स रॉयस बना रहे हैं अभी बिजनेस का, बट अभी हमारे पास वो ट्रैक्शन नहीं है दिखाने के लिए जो जस्टिफाई करता है। Actually, ये आंसर करूंगी मैं, क्योंकि my thought process is a little different. When you're building a large house or a big structure, your foundation has to be right.
I'm building that foundation, and we have also shown traction. It is not that we have only been like burning money. There has been significant improvement. My CM2 was negative last year. This year it's positive. My EBITDA was minus 49% last year. It is minus 20%. And by next December, we are on track to break even. And year after, we will be profitable. So we are on track. जब आपने बिजनेस शुरू किया था 4 साल पहले, आपकी फैमिली ने कितने पैसे डिसाइड किए थे कि हम इस बिजनेस में लगाने को तैयार हैं? About 5 crores. कितने लग चुके हैं? 14. Oh, my number 8 was wrong. Okay. No, but in 14, 6.5 crores are in my inventory. अभी और कितने पैसे हम लगाने को तैयार हैं? We are talking to investors, and beyond that, even if I have to invest, I can invest another 5-6 crores. अभी ये बिजनेस मुझे लगता है अनफंडेबल है। हमने मामा अर्थ में इन्वेस्ट किया था जब वो शुरू हुआ था। ऐसे नंबर कभी नहीं थे उनके। जो आपका स्केल है उससे वो बहुत पहले काफी बेटर इकोनॉमिक्स में थे और प्रॉफिटेबल भी हो गए थे। हमने इतने पैसे क्यों लगा दिए इस बिजनेस में अभी तक? So in this 14 crores, we have a inventory of 6.5 crores on cost. So what we have actually invested is about 8 crores, and year to date we have that 1-to-1 capital efficiency. We have done 8.5 crores. So in our view, it is not as dire as what you're saying. इन्वेंट्री 12 महीने की इन अ बिजनेस लाइक दिस रखना इज सुइसाइड. All of that is just cash that is blocked. Which means that cash की कदर कम है, तभी हम इस सिचुएशन में आते हैं कि हम इतना कैश ब्लॉक कर देते हैं. ये 6.5 करोड़ की इन्वेंट्री की एजिंग क्या है? सबसे पुराना स्टॉक कब बना था? 5 to 6 months max, not more than that. 5 महीने पहले हमने ये डिसीजन क्यों लिया कि हम 1 साल की इन्वेंट्री खरीद लेते हैं? कोई तो रीजन होगा, आई एम श्योर. Yeah, so 2-3 months पहले वो shipping crisis हो गई थी. Red Sea, there was a crisis, and then because of the geopolitics, and then whatever my raw material, which had like a 5-month lead time, they said it will take almost like 9 to 10 months lead time. We have certain raw materials, like quite a few, which are imported. So that time we kind of panicked, and we did get a lot of inventory because we wanted to make sure that we never went out of stock. Because if I go out of stock of my, my shampoo or anything, then that will definitely affect us. आपने बोला कि एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए एक फाउंडेशन बनाने की जरूरत होती है, तो आपने टीम बनाई और उसमें आपका खर्चा. तो कैन यू टेल मी कि टीम में आपके कोई 1-2 की लोग जिसको आपने हायर किया है? I have some fractional consultants like fractional growth officer, fractional creative head, fractional CHR, क्योंकि I cannot afford to have them full time. Give me some examples. So I have one of the top 10 digital marketing experts in India. Okay. And he is my fractional growth officer. And I have one of the marketing head of Titan Fast Track for 10 years. He's on board as our fractional creative head. How did you reach out to these people? This is through my husband's connects. And what does your husband do? So he's into building materials. He's into manufacturing Got it. polycarbonate roofing sheets. You know, companies are not built by fractional Yes. people. Yes. तो ये fractional ecosystem आप बंद कर दीजिए. Okay. You don't need consultants. आपको लोग चाहिए जो hungry हैं to learn. I agree. And you yourself need to learn. Second, आपको कोई चाहिए जो आपको discipline में रखे. Because आपके पास एक cash pipe है जिसको आप utilize कर रहे हैं. You need somebody to make you accountable. I don't think your husband is making you as accountable today. आप decide कर लो कि बस next 2 करोड़ रुपए और इसके बाद this company will either shut or it will rise. Understood. But that discipline has to stay. Understood. 2 करोड़ में इसको टर्न अराउंड करो, फिर इन्वेस्टमेंट रेज करना एंड स्टेप आउट. आई एम आउट. Thank you. प्रसन्ना, आपने एक चीज बताई थी, फाउंडेशन बहुत जरूरी है, पर एक कंज्यूमर बिजनेस की जो फाउंडेशन होती है वो होती है प्रोडक्ट मार्केट फिट. आप अगर 100 रुपए का कुछ प्रोडक्ट बेच रहे थे तो उसमें आप 20 रुपए का घाटा कर रहे थे, वो मैं नहीं मानती हूँ प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है. एंड इसमें जो आप बोल रही हैं कि आपका एम्बिशन है 500 करोड़ इन 5 साल, दैट विल मेक यू रेज कैपिटल. वो जो ट्रेडमिल है इन्वेस्टर वाली, वो उस पे भागते रहना पड़ता है, न्यू लॉन्च करते रहना पड़ता है. तो अगर आपको एक ऑनेस्ट ब्रांड बनानी है, 1-2 करोड़ से ज्यादा और कैश कुछ भी हो जाए इसमें नहीं जाना चाहिए. Sure. नो फंड रेजिंग,
and building this over 10 years as a 100 crore honest brand which is genuinely better because कोई भी brand नहीं कर पा रहा है. अगर आप okay है to make 10 years में 100 crore का business, Yes. तो I would like to help you. मैं आपको ऑफर करती हूँ 25 crore for 3%. 25 crores. So, lakhs. I was like, Well, 25 crores solves all the Yes. 25 crore से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. उल्टा हो No, no, जाएगा. no. I'll listen. 25 lakhs for 3% and there is no valuation conversation here. This is to stay honest to a mission, conditional to no capital raise next 2 years. Thank you so much, Vinita. It means a lot. प्रसन्ना, Yes. मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ा इशू प्रोडक्ट मार्केट फिट का, प्राइसिंग का, इंग्रेडिएंट्स का, इन्वेंट्री का शायद नहीं है. सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है कि हमारे यहाँ कोई कंस्ट्रेंट्स ही नहीं है. आगे जाके मैं बस इतना ही आपको बोलूंगा कि थोड़ा कंस्ट्रेंट्स के साथ काम करें. Sure. दिस बिजनेस विल रिक्वायर अ रीसेट. मैं चाहता हूँ मैं आपकी मदद करूँ क्योंकि ये टर्न अराउंड सिचुएशन से मेरे को मजा आता है, लेकिन उतना टाइम मैं शायद दे नहीं पाऊंगा. वो आप ही को करना होगा. वो मैं करूँगी. I just need your. I can give you my blessings and wish you all the best. Today I'm out. Thank you. Prasanna, I have a very different view here. We have all come from a lot of constraints. हमने businesses शुरू किए with very little capital. तो we think that is the only way to build a business. हम founders को encourage करते हैं कि आप seed कीजिए, series A कीजिए, series B कीजिए. That time we celebrate them. लेकिन कोई अपने खुद के 25 करोड़ रुपए अगर लगा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है भाई? You are your own seed investor and series A investor. अगर आपके पास clarity है of getting to break even in the next 6 to 8 months, by all means you should. That's what I think you have the power to do and be. I wish you good luck, although you don't need it. I think you're going to do very well. All the best. I'm out. so Prasanna, coming back to your business, बहुत issues है. Inventory issues है. हम तो SKUs की और हमने बातें भी नहीं की. How many SKUs do you have? 20. Exactly. So when you really analyze the inventory, SKU wise analysis करके correlating to sales, उसका एक अलग dimension आता है. तो I see that as a very big red flag. EBITDA बहुत बड़ा concern है. हिंदी में वो एक कहावत है ना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ. इनकी चादर तो बहुत बड़ी है. No, I don't look at it that way. कितनी भी बड़ी चादर हो, my point is you have to have financial discipline for a business to scale. However, एक contrarian bets लेने में and proving people wrong is a different मजा. And Yenakkat Tikitoro products Ramba Pedicure. Oh. Did I say it right? Perfect. I do like them. I think there's a lot of potential. मैं आपको एक ऑफर दूंगी. Okay. अगर आप ये साल 17 crores में exit करेंगी, which I'm quite sure you will, I will give you 25 lakhs for 1%. Okay. After you become profitable, I would like to get 0.5% of your sales as royalty, only till I recover my principal amount. आपके पास दो ऑफर्स है. Please एक विनीता decide. का ऑफर है और एक नमिता का ऑफर है. First of all, thank you so much, Vinita and Namita. I'm like, thank you. Really means a lot. Thank you, Vinita, for your offer. Namita, I would accept your deal. Thank you. Congratulations. You're going to be the turnaround success story of season She's 4. already successful. Yes. And I'm going उसे to come turnaround next की year जरूरत and नहीं है. share my success story. We're going to my do that. God. Yes, we're going to do that. Congratulations. Congratulations, Prasanna. Namita will bring the discipline that Fantastic, you and I need. really believe in you. Thank you I so think we're much. going to make it big. Thank you. Thank you. Means a lot. Very proud of you. All the best. Hello, Prasanna. Congratulations. Thank you. How happy are you? I have no words to describe. वो मैं बता नहीं सकती. I'm Really? so happy. आप सोच के आए थे आपको ये शाक चाहिए इन स्पेसिफिक, ऐसा था कोई स्ट्रैटेजी? Actually, हर एक शाख
they have something to offer. So I was Yeah. very, very happy to get the offer deal from Namita. Everything like kind of came to place and very, very happy. अमेजिंग एंड आई पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पिच बिकॉज आपने जो गैप आइडेंटिफाई किया है और उससे एक बिजनेस बनाया है आई रियली होप यू ग्रो एंड इट्स अ Thank you so ग्रेट much. कैटेगरी दैट यू आर डूइंग मुझे ये भी पता है कि आप अपने सन को छोड़ के आए हो चेन्नई में हाँ. तो जब आप पिच दे रहे थे मैंने आपके बेटे के लिए कुछ मंगाया था Oh wow! या फ्रॉम स्विगी इंस्टामार्ट 10 मिनट में आ गया एंड आई नो यू हैव अ फ्लाइट टू कैच Yes. So please take this for him. You're doing so much for other children, so this is a little something for him. Thank you so much. Guys, प्रसन्ना जी तो जल्दी में है. अगर आप भी कभी जल्दी में हो और आपको कुछ भी चाहिए, you name it, they have it. It's Swiggy Instamart. 10 मिनट में सब कुछ आ जाता है. Order now. अगर आप में भी है शार्क्स जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम. डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ. मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस पे लेटना मत, बिकॉज तुम दोनों में से कोई इस पे लेट गया तो उसमें 20 मिनट चले जाएंगे. Okay, but musculoskeletal healthcare to all is huge statement. Oh no, this is dangerous. There's health plus there's Anupam angle in this. Oh my god, I'm dead. शार्क्स इंडिया के घुटने हिल रहे हैं. और कंजी भी हो रहे हैं. देखिए, हम सब लोग स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के तो बात करते ही हैं. टकले होने की भी बात कर रहे हैं आजकल. आपको पता है? लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हर साल 6 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने की घिस जाने की बीमारी से डायग्नोस होते हैं. रिसर्चर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक साइलेंट एपिडेमिक भी कहते हैं. Yep. हर साल 2.5 लाख से ज्यादा इंडियंस ऑस्टियोआर्थराइटिस से होने वाली फिजिकल डिसेबिलिटीज के कारण नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराते हैं. और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स और स्पोर्ट एक्सीडेंट से होने वाली लिगामेंट टेयर्स, नी फ्रैक्चर्स और मेनिस्कस टेयर्स की भी हजारों सर्जरीज की जाती है. जब आपके घुटने सर्जरी से बाहर आते हैं उस टाइम पे पेशेंट के घुटने के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक बहुत डेलिकेट फेज में होते हैं. इस रिकवरी फेज को अगर हमने ट्रैक करके अर्ली स्टेजेस पर ही डिटेक्ट नहीं किया तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है पेशेंट के लिए, जैसे कि क्रॉनिक पेन. देयर इज इवन अ रिस्क फॉर री इंजरीज. अब इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई एंड इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आए हैं अश्वावेटेक का फिट नीज. शार्क्स, मेरा नाम है अनमोल अजय सक्सेना. मैं हूँ गाजियाबाद यूपी की और अश्वावेटेक की मैं फाउंडर और सीईओ हूँ. फिटनीज एक एआई वेरेबल सेंसर सिस्टम है जो आपके पोस्ट सर्जिकल रिकवरी प्रोग्रेस का मॉनिटर करता है. ये एक मेडिकल डिवाइस है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और आप लोगों को और हम लोगों को एक डिटेल डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट मिलती है जो हमारे नी का हेल्थ स्टेटस बताता है. हमारे सारे टेक्नोलॉजीज क्लिनिकली वैलिडेटेड, आईएसओ सर्टिफाइड एंड ग्लोबली पेटेंटेड भी है और आज 115 से ज्यादा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स और फिजियोथेरेपी सेंटर्स में ये अवेलेबल है. हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 1.25% इक्विटी. अगर आप में से किसी के भी घुटने में दर्द है तो अगले 10 मिनटों में मैं आपको आपके घुटने का रूट कॉज बता सकती हूँ. No way. क्या आप में से कोई जानना चाहेगा? We can. जा See अनुपम. if there's any. अनुपम is a prime candidate for knee तो problem. आप प्लीज यहाँ आ जाइए और अपने शूज उतार लीजिएगा. इनके घुटने ऐसे ही कमजोर हैं. फिटनेस के डिवाइस में वी हैव 10 टेस्ट, बट आज के लिए हम टॉप 5 मोस्ट क्रिटिकल टेस्ट करके आपको एक रूट कॉज एनालिसिस बताएंगे. These are basically wearable sensors. ये 4 सेंसर्स मैं आपके थाई पे और शिन पे लगाऊंगी. I'll tie this here. मैं आपके बॉडी के हिसाब से एक फोटो लूंगी और कैलिब्रेट करूंगी. ओके? I feel like a right idiot. Feel you are.
ठीक है, ये जो मैंने फोटो क्लिक किया है इससे हम इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेटिकली अनुपम सर के मेजरमेंट्स ले रहे हैं. दिस इज बेसिकली योर फीमर कलेंट एंड टिबिया कलेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट. सर आप प्लीज लेट जाइए. On my back. On your back, sir. We will be doing flexion, extension. Flexion मतलब नी कितना बेंड कर पा रहा है, एक्सटेंशन मतलब घुटना कितना स्ट्रेट करके लॉक हो पा रहा है. भाई मुझे बड़ी नर्वस Muscle फीलिंग आ रही है इसे लेट के. नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी से कर देती हूँ. प्लीज बेंड योर नी, लेफ्ट वन, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना. ठीक है, रिलैक्स करिए सर. 135 डिग्री इज योर लेफ्ट नी फ्लेक्शन. राइट नी के लिए आप बेंड करिए सर. एक्सीलेंट. रिलैक्स प्लीज. नाउ अगले टेस्ट के लिए प्लीज बैठ जाइए. लेफ्ट नी अपना जितना आप इस वे में एक्सटेंड कर सकते हैं करके लॉक करिए प्लीज. कैन यू सी अनुपम सर इज गोइंग इन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ -5 डिग्री, which is good, which is normal, sir. राइट नी के लिए लेट्स ट्राई इट प्लीज. ठीक है, ये -2 डिग्री में है. दिस इज ऑल्सो नॉर्मल. अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैं फिट मस्ट लेके आऊंगी. दिस इज अ मसल स्ट्रेंथ टेस्ट. मसल स्ट्रेंथ के लिए एक पैरामीटर होता है आइसोमेट्रिक मसल स्ट्रेंथ. हम सिर्फ अभी आपका क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे. आई विल पुट दिस डिवाइस आपके क्वाड्रिसेप्स पे. थोड़ा पीछे हो जाइए सर. हाथ को क्रॉस कर लीजिए सो दैट यू आर नॉट एंगेजिंग योर कोर कंप्लीटली. मैं डिवाइस को यहाँ रखूंगी, आप आगे की तरफ पुश करेंगे. स्टार्ट. पुश 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 पुश. Sir, do you see you are at 50.2 here? ठीक है, तो I'm going to do this for your right knee also. 29.2. Anupam, Come on. अच्छा सॉरी. I don't. Start. Push. Come on, push. Come on, push. Push, 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 push. यार हंसाओ मत. Come on, push, 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 push. Anupam. ठीक है सर. So you're 40.9 here. We'll go for the next test, gait analysis test. This is a walk test. What we're going to do is यहाँ से जहाँ पीयू सर खड़े हैं ना end of the stage, वहाँ तक walk करके वापस आएंगे और एक और राउंड लेंगे. मैं आपको बोलूंगी सर इधर आ जाइए. जब हम ये आप थोड़ा टोटल 2 राउंड प्रीमेच्योर करते हो चीजें. He's getting into the vibe. ठीक है. So stand still for 1 second please. वो नहीं होता मेरे से. नहीं सर, ये नहीं अच्छा, करना है. sorry, Stand sorry. still, let the sensors calibrate. चलिए लेट्स गो. आपका नेचुरल पेस, जो आपका नेचुरल वॉक है. ठीक है, ये निकल गया नीचे राइट वाला. चलो उसको छोड़ दो लेफ्ट ठीक वाले. है, आ जाइए. नहीं ठीक है सर. ठीक है ना. अगेन कंटिन्यू प्लीज. अरे. लेट्स कीप गोइंग. वन मोर राउंड, लास्ट राउंड. Do it. Push, push, push. भाई, आपको नेक्स्ट टाइम पहले And बताना चाहिए क्या come करना. on. नो बट ये सब सर कम टू द डॉट, कीप फेसिंग द पेंटिंग. हो गया. हाँ, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक स्क्वाट टेस्ट करेंगे. आप यहाँ जाइए प्लीज. It's not यहाँ पे आ ending, जाइए. man. दिस इज द लास्ट टेस्ट सर, आई प्रॉमिस. आप यहाँ पे आ जाइए, नहीं खड़े नहीं, अभी रहिएगा. 3-4 टेस्ट और कराइए आप. हमें सारे 10 चाहिए. स्क्वाट आपको करने हैं 3, as deep and as fast as possible. Only 3. Start squat. 1, come up. 2, come दर्द up. पिला दिया 3. That's it, sir. Stop. Done. Anmol, I love you. You are my favorite founder हो ever. गया. Yes, Test sir. हो गया? Done है. पक्का. हाँ जी सर. So now what I'm going to be doing is I'll generate sir's knee port. Knee port. This is how our report looks like. तो 0 डिग्री इज नॉर्मल एंड 125 से ऊपर फ्लेक्शन होना चाहिए. तो एक्सटेंशन में आपका जो है, आपके एज और जेंडर के हिसाब से आपका मसल स्ट्रेंथ 25 kgf होना चाहिए. आप एक्चुअली यू आर मोर देन द नॉर्मेटिव पॉपुलेशन. अच्छा. आई विल टेल यू वन थिंग, आपका क्वाड्रिसेप्स राइट एंड क्वाड्रिसेप्स लेफ्ट में 10 kgf 50 के ऊपर हो गया. ऑलमोस्ट 20% का इम्बैलेंस है. अच्छा. 15% नॉर्मल होता है. मतलब 5% थोड़ा. अब आपको राइट में या तो क्वाड्रिसेप्स आप बैठे बैठे हैं, आप वैसे क्रॉस लेग भी बैठते हैं काफी, तो हो सकता है वहां से थोड़ी इम्पैक्ट आ रही हो. आप डॉक्टर हैं? नहीं मैम, मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बाय डिग्री एंड बाय पैशन. तो आपको ये आइडिया कैसे आया? दिस इज अ वेरी नीश एरिया. एक्चुअली एक पर्सनल प्रॉब्लम था. सबसे पहले तो मेरी खुद की एक वेट लॉस जर्नी रही है. मैं जब कॉलेज में थी, मैं बहुत ज्यादा भागती थी इस बॉडी वेट से ज्यादा पे. तो 1.5 साल के अंदर मेरे सारे बैक और घुटने मतलब जा चुके थे. आउच.
मेरे को ये भी थोड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा है कि मेरी मम्मी 8 सालों से अपने लिगामेंटर और बाइलैटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के घिस जाने के वजह से वो खुद 8 साल से फिजियोथेरेपी ले रही थी। ये थोड़ा ट्रिगर पॉइंट मेरे लिए रहा कि यार मेरे को घुटने का प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को तो 8 साल से चल रहा है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई। उसके बाद में थोड़ा मैंने रिसर्च किया, व्हाट इज सेफ लोडिंग, व्हाट इज लोड बेयरिंग ऑन डिफरेंट साइड्स। फिर थोड़ा इंटरेस्ट जगा, एक हैकाथॉन था हमारे कॉलेज में, तो वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को बोला यार कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ बढ़िया डिवाइस बनाते हैं कि आपको बता दे कि भागना किससे है, आपकी बॉडी के स्टेटस क्या है और आपको क्या वे में कुछ करना है। वहाँ से एक आइडिया आया, बट सॉर्ट ऑफ कैटल हर्ट मेंटालिटी, मैंने फिर नौकरी पकड़ ली और फोर्ड मोटर्स कंपनी चेन्नई में मैं एज अ प्रोडक्ट डेवलपर चली गई थी, सारे दोस्त भी जा रहे थे, बट काफ़ी अपॉर्चुनिटी मैंने खुद से निकाली। मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स आई यूज्ड टू गो शैडो लॉट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑलमोस्ट 75 फिजियोज एंड ऑर्थोस को मैंने शैडो किया। फिर एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट निकलना चालू हुआ, पेपर पेन के उस प्रोडक्ट को जाके क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये आपके यूजफुल होगा, हाउ मच वुड यू पे फॉर इट, इज देयर अ रियल प्रॉब्लम और नॉट। एंड ये करने के बाद आई डिसाइडेड यार अब तो एक तो थोड़ा बैंक में पैसा आ गया, उसके बाद थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आ गई कि आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दिस अलोन। तो इसलिए फिर मैंने वो क्विट करके 2-2.5 साल में आई स्टार्टेड अश्वा। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने 30 से ज़्यादा लाइव सर्जरीज में खुद से स्क्रबिंग किया है। I have actually seen knee replacement surgeries happening the traditional way, फिर robotic way, handheld robotic way। मैंने hip replacement surgery भी देखी है, ACL meniscus भी देखा है। What a story, what a story, amazing. what a Amazing. story। ये हार्डवेयर आपका है या हार्डवेयर आप कहीं से खरीदते हैं? पूरा हमारा खुद का डिजाइन है। सो इनफैक्ट द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटोटाइप्स ये हमने खुद से डिजाइन किया, मैंने खुद डिजाइन किया अपना एक PCB। और एक डिवाइस कितने का है? MRP 7.5 लाख प्लस टैक्स है। फिटनेस कॉम्बो में बेचती हूँ। कितने में बेचते हैं वो आप? अर्ली कस्टमर्स को हम लोगों ने 5-5.5 लाख में ही सेल किया है। सो आपका जो नेक्स्ट एक्सपेंसिव है, Yes. जो मार्केट सोल्यूशन अभी के लिए आपके आने से पहले जो चीपेस्ट था वो कितने का होता होगा? अगर सिर्फ वेरेबल टेक्नोलॉजी की आप देखें तो ओनली गेट एनालिसिस के लिए एक अमेरिकन ब्रांड है गेटऑन जो 20 लाख का है। एंड उसके अलावा अगर आपको डिजिटली फ्लेक्शन एक्सटेंशन को मॉनिटर करना है तो वो 14 लाख का है। बायोमेट्रिक का एक यूके का ब्रांड है। उसके अलावा देयर आर सम न्यू स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग, फ्लेजलिंग स्टेट में है वो अभी भी, बट दे आर आल्सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 30,000 यूरोस। 30 लाख के वो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो इटली और ग्रीस तो से 5 लाख रेंज में कुछ नहीं है मार्केट में, आप श्योर? कुछ भी पर नहीं है आपकी अभी। एक्यूरेसी उतनी है? Yes, sir. I have some products. If you would like to basically see the packaging and everything as well. Please. This is FitMust. जो first product है वो FitMust है। हाँ, ये फिटनीज है। ये अपने ऊपर लेटा के प्लीज खोलिएगा, ठीक है? This is FitMust. ओके। कमाल की एनर्जी है आपकी। Fitmust क्या? FitMust is full integrated stand for muscle testing, sir. Ma'am, this is FitMust. Fusion, I can look at it together. Yes. नाम बिल्कुल Acronyms are great. दवा के एक्चुअली बनाए बिल्कुल आपने जैसे नाम। वो हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट डिफेंस जैसे Yes, मूवीज sir. में नहीं दिखाते Yes. वो न्यूक्लियर बटन वाला। Yes, sir. फिटनीज में हम 4 मोशन सेंसर्स, एक चार्जिंग डॉक देते हैं, उसके अलावा थोड़े एक्सेसरीज होते हैं जैसे मेजरिंग टेप एंड एक टैबलेट भी जाता है। This is for 5 lakhs. मैम द फिटनीज प्लस फिटमस्ट कॉम्बो हमें साथ में बेचना पड़ता है, वो 7.5 लाख का है। फिटमस्ट अकेले 85,000 प्लस टैक्स में जाता है, एवरेज 70 to 80,000 में हम बेचते हैं। लोग बोलते नहीं आपको यार ये 7-8 लाख का तो लग, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट समथिंग बिगर एंड समथिंग मोर। ऐसी फीडबैक आती है कभी आपको? सर आती तो है, लेकिन तो भी आज हम लोगों ने इसी प्राइस पॉइंट पे 2 एस्टर्स से लेके अपोलोस को बेचा है, मणिपाल को बेचा है। कोई रिपीट और ऑर्डर आया है आपके पास एनी ऑफ दीस हॉस्पिटल? सर फिटमस्ट के बहुत आते हैं, फिटनीज के अभी तक रिपीट ऑर्डर नहीं आए। Any orthopedicians have vetted your product? क्लिनिकल वैलिडेशन हमने किया हुआ है 45 पेशेंट्स फेज 1 में सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर में, एंड उसके बाद 310 पेशेंट्स हमने रामा एंड सेंट जॉन्स के साथ में किया हुआ है। और उसके अलावा हमने ऑलमोस्ट अभी तक 42 हॉस्पिटल्स एंड फिजियोथेरेपी सेंटर में सिर्फ फिटनीज लगाया है। तो सेल्स क्या है फिर आपके? FY21 में हमने एक्चुअली फिटमस्ट लॉन्च किया था। उस टाइम पे 7-8 प्रोडक्ट्स बेचे थे, तो हमने 5.5 लाख की सेल्स की थी। दिस इज विदाउट टैक्स। FY22-23 में हम लोगों ने 15.5 लाख की लॉन्च की थी, फिटमस्ट का ही सेल्स था। लास्ट ईयर जनवरी में हम लोगों ने फिटनीज लॉन्च किया तो 50 लाख की सेल हुई थी।
इस साल H1 में हमने 44.9 lakhs किया है और दिस ईयर वी हैव डन 74 lakhs इन सेल्स अभी तक, मतलब 1.5 महीने में हम लोगों ने 30 लाख की सेल्स और कर दी है। तो 16 डिवाइसेस अभी तक हमने बेचे हैं मैम। इसका ग्रॉस मार्जिन क्या है? मैम लास्ट ईयर हमें अपने 50 लाख पे 49% का ग्रॉस मार्जिन था, इवन दो हम लॉस में थे। H1 में हमारा 87% का ग्रॉस मार्जिन था, अगेन 8 लाख का लॉस था क्योंकि ऑपरेशंस हाई है। ग्रोस मार्जिन इतना कैसे बढ़ गया आपका? सर ग्रॉस मार्जिन हमारा इसलिए बढ़ा था क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने डायरेक्ट कॉस्ट जो इनकर किया था 25 लाख का, उसके ऊपर हमने काफ़ी, एक तो प्रोडक्ट हमने रेगुलेटरी अपने MDR रेगुलेशंस के लिए यूज़ किए थे, क्लिनिकल ट्रायल्स के यूज़ किए थे, डेमो के पीसेस निकाले थे और बहुत कम ऑलमोस्ट 16-17 ही प्रोडक्ट्स एक्चुअली बेचे थे। अच्छा, वो सारे आपने GM से? एग्जैक्टली सर, That's सारे very, हमने। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट योर नंबर्स, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव। Which needs to be done. क्या हमारा बॉटम लाइन था इस साल? लास्ट ईयर FY 23-24 में हमारी इनकम थी 50 lakhs एंड हमारा फिर ग्रॉस लॉस ऑलमोस्ट 77 lakhs का आया था, नेट लॉस सॉरी, उसमें EBITDA -150%। और पहले साल कितना था? FY 23 में लॉस कितना था? 80 लाख का लॉस था सर। और इस साल H1 में जब आपने 45 लाख की सेल की, कितना लॉस है? 8 लाख की लॉस थी सर, एंड उसके ऊपर भी एंड ऑफ द H1 वी हैड 14 lakhs इन इन्वेंटरी ऑन दैट 8 लाख का लॉस। और ये अक्टूबर में जो 30 लाख की आपने सेल की, जी उधर तो प्रॉफिट हो गया होगा। ऑलमोस्ट हमारा 17.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है सर, बर्न। वेल डन टाइगर, गुड फॉर यू। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? यू हैव रेज सम मनी। यस सर, बताइए उसके बारे में। हम लोगों ने टोटल अपने लाइफ टाइम में 4.85 करोड़ रेस किया अभी तक। वाओ, वेल डन। तो उसमें 72.5 लाख हमें ग्रांट से आए थे। उसके बाद में हमने एक 30 लाख का हमने डायरेक्ट सीड प्री सीड फंड उठाया था 5% की इक्विटी पे। दिस इज 2019। May 2022 we raised a seed round. This was 2 crore at 20% equity. So this was led by Kumar Vembu from Zoho. इस साल हमने just एक और round close किया. This is again like a pre-series का छोटा सा bridge round. This is 1.85 crore at 18 crore post money. This is again led by Kumar Vembu sir only. वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपने इतना सारा कैपिटल रेज कर लिया। काम करते करते रात को रिसर्च करके आपने कंपनी खड़ी कर ली। How? What is driving this? Pretty amazing. This is incredible. Thank you. Passion है सो बस, कुछ बड़ा करना है। मुझे इस प्रोडक्ट पे पूछना था यूनिकनेस, बिकॉज Yes. मैं एज अ रनर लाइक स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर्स में जा चुकी हूँ, जी। तो वहाँ पे काफी जगह पे उनके पास बॉडी स्कैन्स, गेट एनालिसिस, ये Yes. पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे जी। रिपोर्ट्स मिलती है। जी तो इज दिस टेक्नोलॉजी रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इन द मार्केट? मतलब isn't there an already solution with orthopedicians and sports doctors? मैम, तो आपने अगर आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स सेंटर्स में गए हो तो आपने साइज देखा है इक्विपमेंट का? करोड़ों के कॉस्ट होती है, पावर हंग्री होते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन इज अफोर्डेबिलिटी। एक है बिकॉज इट्स अ वेरेबल सिस्टम, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट and it's actually much affordable to do this test anywhere and at a much subsidized cost. Second thing, AI engine. हमने इसी साल में एक्चुअली अपना खुद का एक AI engine डेवलप किया। उसको 3000 रिपोर्ट्स पे हमने एक रिपोर्ट को एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो हमारे टीम पे है और एक फिजियोथेरेपिस्ट है बहुत सीनियर लेवल के जो हमारे टीम पे एडवाइजरी रोल पे है, उन लोगों ने एक रिपोर्ट बैठ के उसका इंटरप्रिटेशन, रूट कॉज लिखा, हमने AI को ट्रेन किया और उसको फिर लॉन्च किया है। Anmol, don't you think the ability to financially buy a 7 lakh device? जी। There are only certain number of hospitals in Yes, India ma'am. जो ये afford कर पाएंगे। I have advisors from Johnson and Johnson. उनका मैं आपको एक एस्टिमेट कोट कर रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि 2000 से 2500 ही डिवाइसेस हम इंडिया में बेच सकते हैं। अनमोल, जी what is the dream? मेरे को 1 मिलियन पीपल को अपनी टेक्नोलॉजीज एट जस्ट $1 अ डे उनके घर तक पहुंचाना है, एंड फॉर दैट आई नीड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स टू मेक दिस अ मेडिकल डिवाइस एंड प्रिस्क्राइब माय डिवाइसेस टू देम टू टेक होम। Not at this cost. यार स्पंदन का इसी डिवाइस 4000 रुपए का आता है, 2000 रुपए का 6, तो ये 7 लाख रुपए का क्यों है? मुझे नहीं पता है। You're not then solving the problem that India has. Understood. Right? मैंने देखा है इंडिया में एक वेव चली है जी। build diagnostic.
यस काफी कंपनीज आती हैं शार्क टैंक पे, मैं पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ इन कंपनीज में, जी। एंड उनमें जो टेक्नोलॉजी भी मैं देख रहा हूँ वो काफी एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं लोग। यस सर मुझे अभी लगता है कि एक तो आपका प्रोडक्ट अर्ली है, जी मुझे ये भी लगता है ये बहुत महंगा है, बहुत ओके इंसेनली महंगा है। मैं ये भी कहूंगा कि जो आप ये एआई लेयर बना रहे हो ना, ये जी। अब स्टैंडर्ड हो गया है कि ईसीजी मॉनिटर करो, कोई भी रिपोर्ट Yes. में डेटा, और वो एआई की एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, वो 100% नहीं होता है, उसके बाद भी डॉक्टर का काम लगता है। यस तो आई एम नॉट फुली अलाइंड कि आप ये प्रॉब्लम को बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से सॉल्व कर रहे हो। जी। और टू बी ऑनेस्ट, ये जो आपने स्ट्रैप भी लगाया ना, जी मतलब ये ठीक है, बट ये L1 टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत आगे जाने की अपॉर्चुनिटी है और जी, लोग सर। जा रहे हैं। जी तो आज मैं इससे बाहर हूँ। आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, जी। यू हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल, जी गो डीप एंड मे बी अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है यार, देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व विद द मनी दैट यू हैव, अंडरस्टूड सर राइट? बेस्ट ऑफ यस लक। थैंक यू फॉर योर फीडबैक टू सर, थैंक यू सो मच। अनमोल, जी मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज एन असिस्टेड सर्विस। यस सर यू कैन नॉट बी अ टेक्नोलॉजी कंपनी अगर आप लोगों पे डिपेंड कर रही हैं। जी जी अगर अच्छा थेरेपिस्ट नहीं है, केयर गिवर नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। आई थिंक यू शुड डिग डीपर। आप कुछ सॉलिड बना सकती हैं जी। एंड रियली अचीव योर मिशन ऑफ 1 million at $1 a day। जी, आप देश बदल देंगी। So please focus on that. Yes, I'm out because I'm not seeing that. It's not that clear today. जी, But I'm sir. very proud कि जी, sir. medical devices in India जी आप कर रहे हैं। जी हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है आप जैसे फाउंडर्स के कारण। थैंक यू सर। Thank you. So अनमोल, जैसे मैंने बताया, I have a problem with 87% GC और 7.5 lakh जी मैम and a TAM of barely 200-250 जी। hospitals जी जो ये afford कर पाएंगे. जी That's good as a pre-revenue. जी And for a pre-revenue, जी 40 crore valuation for me is too high. अंडरस्टूड It's too early for me to be an investor. Today I'm out. थैंक यू मैम। अनमोल, जो आपकी ड्रीम है और जहाँ हम अभी हैं जी उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, जी पर मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। जी जो भी आपको मदद चाहिए हो आप प्लीज़ बताइएगा। जी पर आज मैं इससे बाहर हूँ। जी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। मेरा मानना है yes it is an expensive product but cost subject to this being technology that is effective and orthopedicians recommended, जी ये एक जरिया बन सकता है जिसको आप प्री नी सर्जरी एंड प्री Yes. हिप सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जी. नॉट फॉर अदर्स, जी. लगा सकते हैं। जी And I think more than that, I want to take a founder bet. It is much easier to work with founders like that. But I will not be able to match Mr. Vembu की offer. Sure. So मैं आपको आज offer देती हूँ 50 lakh for 4%. जी And इसको हम structure कर सकते हैं in a way that is okay for Mr. Vembu. जी And this is just to help you figure out in the next 1-2 साल कि ये B2B की साइड ज्यादा जाएगा, B2C की साइड ज्यादा जाएगा. Right, And of ma'am. course this is subject to me verifying जी, कि globally ये most affordable जी solution है which जी, is ma'am. useful for orthopedicians. दैट इज All ओके right, congrats. You have an offer. क्या करना है, Thank you. अनमोल? Ma'am, I'm not very sure how this is going to pan out with my investors. हमने अभी एक 18 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट 18 करोड़ पे 2.7% होता है. आप जी. मुझे 2.7% जी equity में and 1.3% as advisory दे सकते हैं. Ma'am, as advisory again you will have to purchase that amount of equity from the Well company. right? done. Well done. उसके Well जो done. भी मैकेनिक्स है वो हम समझ लेंगे, बट बेसिकली इफेक्टिव वैल्यूएशन मेरी होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, which is linked to 50 lakh 4%. Ma'am, to get a shark as an advisor, I'm always open. मेरे को learning चाहिए ताकि I can keep improving my business and make this a global brand. I am okay with giving that equity to you. Let's do it. Let's do it. All right. Deal पक्की then, ma'am. Figure out करते हैं. You're serving a manager. Thank you so much, ma'am. Welcome to ACO Change Makers, where we really welcome change. Rising digital growth और education के empowerment से हम एक नई culture की legacy बना रहे हैं
और आज हमारी चेंज मेकर है अनमोल। इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एंड इट्स फॉर द गुड। यू नॉट ओन एंटरप्रेन्योर, यू आर सोशल एंटरप्रेन्योर। हम पहले से ही कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एनी सॉर्ट ऑफ नी पेन एंड नॉट वेट फॉर द प्रॉब्लम टू अराइज? राइट, द हेल्थ केयर और द माइंडसेट ऑफ पीपल वो बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ रिएक्टिव होता है, नॉट रिस्पॉन्सिव। यस, अगर हमें रिस्पॉन्सिवनेस टाइम पे लाना है तो देयर आर वेरी सिंपल स्टेप्स एक्चुअली टू प्रिवेंट अर्ली ऑनसेट ऑफ नी पेन। मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे तो the worst enemy of knee pain actually is muscle strength. Don't hesitate to, bend down to lift something. some kind of exercise in some kind of movement. Anmol, thank you and thank you for bringing this change. आपने जो भी बोला, I'm taking it back home with me. और वैसे ही ACCO भी रेवोल्यूशनरी ऑफरिंग से इंश्योरेंस का लैंडस्केप चेंज कर रहा है। अब कार इंश्योरेंस लेते टाइम नो स्पैम कॉल्स। प्राइस और पॉलिसी कवरेज को लेकर जो कंफ्यूजन है ना, उसे अवॉइड करो। सीधा ACCO का कार इंश्योरेंस लो। इट्स इजी, ट्रांसपेरेंट, हैसल फ्री एंड प्रीमियम भी बिल्कुल सही। अनमोल, टू सेलिब्रेट योर टाइम इन द टैंक, ACCO और शार्क टैंक की तरफ से एक मोमेंटो है आपके लिए। दिस इज फॉर यू अनमोल। Thank you. Congratulations. Thank you so much. Shark Tank India, co-presented by ACCO Insurance, Pokebazi and Swiggy Instamart, co-powered by Adani and Jaqua Bath & Light, and partners Raison Solar, ICICI Direct, Lenskart and Sophie. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है स्वाति, मैं मुंबई से हूँ और मेरे ब्रांड का नाम है असीम बाय असीम शक्ति। भारत की सबसे पुरानी फैशन स्ट्रगल क्या है जानते हैं आप? साड़ी पहनना। Of course. साड़ी पहनना एक इंसान को है, बट इट बिकम्स अ 2 पर्सन जॉब। पति, पड़ोसन और पार्लर वाली दीदी की मदद तो लेनी ही पड़ती है। साड़ी एक भारतीय इंडिपेंडेंट नारी को भी डिपेंडेंट बना देती है, और जैसे तैसे साड़ी पहन भी ली तो साड़ी कहीं छूट के गिर ना जाए उसकी टेंशन। पूरा दिन साड़ी कैरी करने की टेंशन, छूट गई तो उसे फिर से पहनाएगा कौन, उसकी टेंशन। पेटीकोट में फंस के गिर ना जाऊं, सेफ्टी पिन मैं कहाँ लगाऊं, टेंशन टेंशन टेंशन। ट्रेडिशन शुडंट ब्रिंग टेंशन या अब इस टेंशन की छुट्टी, क्योंकि मैं लाई हूँ असीम बाय असीम शक्ति की 15 सेकंड साड़ी। Oh wow. हमारी साड़ी में लाइनिंग ऑलरेडी अटैच्ड है, तो आपको पेटीकोट पहनने की जरूरत नहीं है। आप अपने शॉर्ट और लेगिंग्स पहनकर कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं। हमारी साड़ी कस्टमर के साइज और हाइट के हिसाब से बनाई जाती है ताकि उन्हें परफेक्टली फिट हो, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे पहनने में मुझे लगे हैं लेस देन 15 सेकेंड। वेल डन। Super. Unbelievable. पर मेरे फोन, चाबियां और आपसे मिलने वाले चेक का क्या, मैं कहाँ रखूंगी? ये है एक असीम साड़ी जिसमें है एक जादुई पॉकेट। Oh, I love it. Game changer. Love it. We need this. I love it. साड़ी में पॉकेट पाए, साड़ी की शक्ति बढ़ाएं। Oh, love it. So let's see what's in my pocket today. Boom. अरे वाह। Notepad. Phone. Oh my God. Bottomless pit. Wallet. Don't tell. This is unbelievable. Pepper spray. What? Lipstick. Yay, sugar. Keys. Oh my God. Pen. एक चश्मा भी निकाल लो। आएगा. काजल. Wow. Love it. दवाइयाँ निकालो तुम। दवाइयाँ निकालो. Oh my God, I need to touch that pocket. Sorry, but it's crazy. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे एक स्लिंग बैग कैरी करके अपना साड़ी एस्थेटिक खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसकी शुरुआत 2018 में की थी और देखते ही देखते आज हम 10,000 से ज्यादा साड़ियां सेल कर चुके हैं, और अब हमारा मकसद है दुनिया के हर बोर्ड रूम, हर डिनर डेट, वेकेशन
और फेस्टिवल तक साड़ी को पहुंचाना, जिसके लिए मेरी आस्क है 50 lakhs फॉर 2.5% इक्विटी। तो शार्क्स साथ मिलकर पूरी दुनिया को पहनाते हैं साड़ी, मेड बाय असीम शक्ति फॉर द मॉडर्न नारी। शार्क्स, अब मैं आपको असीम की उस शक्ति से मिलाना चाहती हूँ जिनकी मेहनत से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे अब पहले हम लोग घर पे ही रहते थे, उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, कुछ ज़रूरत होती थी तो अपने घर वालों से मांगते थे, तो उनसे पैसा लेना मतलब उनको हिसाब देना। मैं सिंगल मदर हूँ और मुझे बहुत गरज थी काम के लिए। पहले घर में बैठ के कुछ नहीं, मुझे नहीं आता है, बाबू ये लेके आओ, सबको मैं, मेरे को इतना काम कर दो, ये मोबाइल में मुझे दिखाओ, ऐसा मैं बोलती थी। असीम शक्ति आने में मैंने एक्टिविटी दोनों बच्चों का चालू किया, एक में क्रिकेट जाता है, एक में डांस क्लास में भेजा मैंने। अब क्या होता है कि हम अपना खुद कमाते हैं और अपना खुद खर्चा करते हैं। मैंने मेरी लड़की को सिविल इंजीनियरिंग कराया, आज वो यूएसए है। आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मोबाइल में सब आता है मुझे। मेरे बच्चे को निकाल के मैंने उसको गवर्नमेंट स्कूल में से निकाल के प्राइवेट में डालने के बाद ट्यूशन का खर्चा भी मैंने निकाला। हस्बैंड तो कर रही रहे, उनका तो फर्ज वो कर ही रहे, पर मेरे को इनकम जो मेरी आ रही है तो मैं एक्स्ट्रा कुछ सिखाऊँ बच्चों को। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि जहाँ वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, वो आज अपने घर की बड़ी बड़ी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, अपने बच्चों की फीस भर पा रहे हैं। असीम शक्ति को लेके हमारा विजन यही है कि औरतें अपने घर में एक प्रोवाइडर के रोल में आए, ना कि सिर्फ नर्चरर के रोल में। असीम शक्ति का मतलब ही यही है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए और जो आपको लगता है कि एक पढ़ी लिखी औरत कर सकती है, वो सब कुछ आप भी कर सकती हैं। So everyone, let's welcome #Team Asim. Wow. Oh my God! Oh my God! हाँ भाई, मेरे लिए दो। Thank you. Thank you so much. What a presentation. Fantastic. All right, तो पॉकेट वाली स्वाति, ये बताओ यार, आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया? मैंने एज अ टीचर अपना करियर शुरू किया था, अंडर प्रिविलेज यूथ को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना शुरू करा। मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि आप आज जो उनको सिखा रहे हो वो कल यूज़ कर रहे हैं, तुरंत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर मुझे यूपीएससी की पढ़ाई करनी थी और यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता चला, तो मैंने इन सबको अपने घर बुलाया और उनको बताया कि हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर स्टार्ट करें तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। किन सबको बुलाया? पड़ोस की औरतें, अच्छा। एक मेरी रिश्तेदार भी है, उनमें पुष्पा नाम है उनका, पुष्पा एंड गैंग बोलती हूँ मैं उनको। आपने इनको बुलाया बिकॉज उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ, लोअर इनकम फैमिलीज में पैसों की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस में रहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में। एक दिन था, पुष्पा एंड गैंग मुझे सड़क पे हंसते खेलते मिलने, तो मुझे लगा आज ये लोग हंस रहे हैं, क्या बात है। उनके पीठ पे बैंडेजेस लगे थे, तो मैंने उन्हें पूछा कि बैंडेजेस लगे, आप हंस क्यों रहे हो, हॉस्पिटल से आ रहे हो, क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग कॉस्मेटिक पैच टेस्ट के लिए जाते हैं। ह्यूमन टेस्टिंग? यस। उसको बिल्कुल उन्होंने एक जॉब की तरह बना लिया था। वो हर चीज की टेस्टिंग के लिए जा रहे थे, जितना रिस्की है उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। मुझे लगा ये तो बहुत डेंजरस है। एक औरत के उसका कान ही जल गया था। जब मैंने सोचने की कोशिश करी कि ये लोग ये कैसे छोड़ेंगे, तो यही था कि उनको क्या आता है, तो सिलाई बुनाई आती है और खाना पकाना आता है। तो मुझे लगा फूड बिजनेस मैं नहीं चला पाऊंगी, फैशन में कुछ ट्राई करते हैं।
तो ऐसे सोचते सोचते एक सर्वे में किसी आंसर में लिखा था रेडी टू वेयर साड़ी। ये कौन से साल की बात है? ये 2017। इसको लॉन्च कब किया? हमारी इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो 18 जनवरी 2018 है। ओके। अक्टूबर नवंबर तक मैंने ये डिसाइड कर लिया कि रेडी टू वेयर साड़ी बनाएंगे। 2021 में एक वीडियो वायरल हुआ था, वहां से हमारी साड़ी की प्रॉपर साड़ी की सेल स्टार्ट हुई। ये क्या वीडियो था जो वायरल चला गया? ये वीडियो वायरल हुआ था, जानबूझ के हमने एक व्हाइट गर्ल ली थी ये दिखाने के लिए कि इट्स सो इजी। सो इजी। अच्छा। ये हमें प्रीवियस डे लोकल ट्रेन में मिली थी। इन्हें हमने रिक्वेस्ट करा कि वीडियो बनाया हमारे लिए। अरे वाह। अब रिसोर्सफुल बहुत हो। उसके बाद और काफी वीडियोस हमारे वायरल हुए। लेट्स फिनिश वो 3 साल जो बच गए हैं, जरा 3 लाइन में बता दीजिए। 2021, 2022 व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से ही हम सारे ऑर्डर्स ले रहे थे। 2023 में हमने एक शॉपिफाई वेबसाइट बनाई। ओके। जून जुलाई से हमने मेटा एड्स थोड़े स्टार्ट करे। 95% हमारे वेबसाइट से ही है। अभी 2 महीने से हमने मिंत्रा पे स्टार्ट करा है और हम अभी और मार्केट प्लेसेस पे अप्रोच कर रहे हैं। आप आपका सेल्स बताइए। सो इस साल अप्रैल टू अभी तक हम 1.3 CR कर चुके हैं। पिछले साल हमने 65 लाख किया था, उसके पिछले साल हमने 22 लाख किया था और उसके पिछले साल 19 लाख किया था। स्वाति, आप इसके साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बता सकते हैं? 20% तक कुछ नेट प्रॉफिट। सेल क्या था लास्ट मंथ? 20 लाख प्लस। लास्ट मंथ 20 लाख था? लास्ट मंथ नहीं, सितंबर वाज 20 लाख। सितंबर 20 लाख। लास्ट मंथ वाज 28 to 29। ठीक है। 28 लाख में आपको प्रॉफिट कितना बचा था और ये औरतों को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हमने? अप्रोक्सीमेटली औरतों को टोटल मिलाकर आई थिंक 4.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख के ऊपर गया। प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास? 4 लाख बताया ना उन्होंने। 4 लाख सितंबर का था। 20 लाख। कोई बात नहीं, कोई नहीं। ठीक है, सिमिलर होगा। एक साड़ी कितने की आती है? स्टार्टिंग रेंज 3100 की है और गोज अप टू 6000 फॉर नाउ। आप कितनी विमेन के साथ काम कर रहे हैं? 18 लोग मेरे यूनिट में हैं। मैंने एक एनजीओ को आउटसोर्स भी करा है, वहाँ पे टोटल 17 औरतें ये काम कर रही हैं। 35 ऑड विमेन को आप एम्पावर कर रहे हैं, हाँ। एनेबल कर रहे हैं, और उनका क्या इनकम लेवल आ गया है? पर साड़ी पे हम उनको 300 रुपीज देते हैं। अभी जो हाईएस्ट पिछले महीने की मैं बताऊं तो 44,000 हाईएस्ट है। लोएस्ट वाज 24,000। नॉट बैड। तो एवरेज 30,000। सोच क्या अगले 2-3 साल के लिए? 100 करोड़ की कंपनी बनानी है और इस वर्कफोर्स के साथ बनानी है। इस कंपनी में इक्विटी खाली आपकी है या सबकी है? नहीं, अब इट्स अ 1% कंपनी अभी। तो आप इसे एज अ बिजनेस एंटरप्राइज देखते हैं, एज अ सोशल एंटरप्राइज देखते हैं, एज एन एनजीओ देखते हैं? सोशल एंटरप्राइज देखती हूँ। सपोज आपका 10 करोड़ प्रॉफिट हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? वो आपके पास आएगा? हाँ, हमारे पास आएगा, पर वो डिविडेंड्स में जाएगा औरतों को भी। अब वो कितना % जाएगा क्या, वो मैं अभी से मैं नहीं सोच सकती। Got it, thank you. ये जो साड़ी बनाने के लिए आप जो खरीद रही हैं, वो खरीदने में कितनी पड़ती है साड़ी? 720 विद GST। आप 700 की साड़ी ले रही हैं, 300 उनको दे रही हैं, और कोई खर्चा है? 3000 में क्यों बेच रही हैं? हम नहीं कर पा रहे हैं अभी। एक तो कॉस्ट थोड़ा हाई है बिजनेस रन करने का। हम मुंबई में रेंट पे हमारा यूनिट है, बट हम उस डायरेक्शन में हैं कि हम कम कर सके। कुछ कॉस्ट आपके मिसिंग हैं जो आपको या तो याद नहीं आ रहे हैं या आपने पूरी तरह समझा नहीं है। Numbers are very important, Swati, for an entrepreneur. आपको स्केल करने के लिए एग्जीक्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा, जहां नंबर्स आर वेरी क्रिटिकल। हर बार इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन एन इन्वेस्टर कम्स, हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, टक टक टक, वी वांट द नंबर्स फ्रॉम यू। समझिए, आप खुद को और इन्वेस्टर रेडी कीजिए। वी विल मीट अगेन, फॉर टुडे आई एम आउट। Somewhere I feel you are not clear. You started with a very clear problem of these certain women. But जब मैंने आपसे आपका विजन पूछा, तो आपका विजन निकला कि मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। And I think both can exist, but I somehow feel अभी आपको वो clarity नहीं है कि मुझे इतनी women को इतना income level generate करना है by a certain period. But अभी because of this confusion I am out. स्वाति, मैं पीयूष से डिसएग्री करती हूँ। आपको एक चीज जिसमें बहुत क्लैरिटी इज व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर सेल्फ हेल्प ग्रुप। या दैट
क्लैरिटी ऑफ पर्पस कि मैं जो भी करूंगी पुष्पा एंड गैंग के अपलिफ्टमेंट के लिए करूंगी एंड वो गैंग बड़ा होता रहे और उनकी इनकम बढ़ती रहे. आई थिंक दैट विजन ऑफ योर्स तो क्रिस्टल क्लियर पूरे इंडिया को समझ सब गया. कुछ सीखा जा सकता है. बिजनेस इतना भी मुझे नहीं आता था ना, यहाँ तक भी जो आए तो सब कुछ सीख कर आए, तो फाइनेंस सीखने का टाइम नहीं मिला. करेक्ट. आई थिंक द चैलेंज आपके बिजनेस में अभी ये है कि वैल्यू टू द कंज्यूमर इज नॉट 4 times द रेगुलर साड़ी. आपको थोड़ा सा मोर कंज्यूमर थिंकिंग करना पड़ेगा. या तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके साड़ी फ्रॉम स्क्रैच बनानी पड़ेगी और उसको 999 में बेचना पड़ेगा, या फिर आपको कोई और बिजनेस ट्राई करना पड़ेगा विद द सेम पेमेंट. सो फॉर नाउ आई एम आउट. स्वाति, आपका जो पर्पस है, जो उद्देश्य है इस बिजनेस का, वेरी नोबल. आपने बहुत अच्छा काम किया है. यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड. लेकिन जो एग्जीक्यूशन हमारी है अभी, उसकी लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन मेरे को इतनी हाई नहीं लगी. प्रोसेसेस, सिस्टम्स, MIS, फाइनेंशियल्स, स्केलेबिलिटी, ये सारे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी बिजनेस को बड़ा बनाने में. वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो फाउंडेशंस आज मुझे नहीं दिख रही. तो इसलिए आज मैं इससे बाहर हूं, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. कैसा लग रहा है? 4 शार्क आउट हो गए. क्यों आउट? बुरा लग रहा है. बुरा लग रहा है? मत बुरा लगा. सबसे बड़ा शेयर अभी बाकी. ओह नाइस. आई थिंक बहुत क्लैरिटी है आप में, और एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी भी है. आपको जो नहीं आता है समझ में आ गया. थोड़ा बहुत रट्टा मार के आई थी, लेकिन उसके आगे थोड़ा फाइनेंस और नंबर्स लेके, ये आपकी कमजोरी है. लेकिन आपकी असीम शक्ति पता है क्या? यू वांट टू हेल्प पीपल, और आपको लोगों का संगठन बनाना और उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना, ये आता है. हमारा एक आर्म है कॉल्ड Shaadi.org. उसका एक ही लक्ष्य है, टू ब्रिंग women बैक टू वर्क, और जिसके पास काम नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट दें. राइट. जो आपको चीज नहीं आ रही है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, हम एक मार्केटिंग का पर्सन और एक फाइनेंस का पर्सन लगाएंगे आपके साथ. वो सिर्फ यही काम करेंगे. आप अपना लीडरशिप संगठन बनाने में, लोगों को जोड़ने में कीजिए, ताकि हम तेजी से स्केल. राइट. आई वांट टू ट्रीट यू एज अ बिजनेस वुमन, तो आई विल मेक यू एन ऑफर 50 lakhs for 10%. For 10%. It's a good offer. काफी काम बाकी है, राइट? एंड आई थिंक इट्स फेयर. डील पक्की. ऑलराइट. Good, यार. Congratulations. So impressive, Swati. मैं Congrats. आप दोनों के लिए साड़ियाँ लाई थी. Oh, nice. Super. ये आप रिश्वत पहले देती ना तो और ऑफर आता. This pink one is for Oh, your that's size. lovely. Thank you so much. Is this one? It's beautiful. Thank you. आप कोई भी ट्राई कर अब लीजिए. इनकी तो सारी हैं. सारी साड़ी हमारी है. पीयूष को दीजिए. Thank you. Best of luck, sir. आपके चश्मे का इतना एडवर्टाइज करता हूँ मैं, आप साड़ी का कीजिए. हे भगवान, बस यही देखना बाकी था. डोंट वरी, पूरा देश देखेगा. या नाउ. अब वहां जाके आप फोटो खिंचवा लो, अब इतना कर लो. चाल बदलनी पड़ेगी कि ऐसे ठीक है? असीम शक्ति. हे भगवान. I love it. असीम शक्ति जिंदाबाद. हमारी लीडर कैसी हो? स्वाति जैसी हो. पॉकेट वाली स्वाति जैसी हो. Thank you so much. I'm We'll so be in happy. touch. Yes. Super. Thank you. Congratulations. Well done. Thank you. Gorgeous you're looking, Anupam. Yeah. Gorgeous. But I must compliment you. You're a great sport. Thank you, brother. Hello, Swati. Hi. Welcome to the PokerBaazi zone where you hold the cards. पोकर और बिजनेस ना बहुत सिमिलर है. इसमें कंपटीशन होता है, रिस्क होता है, नंबर्स होता है. पोकर के जो कम्युनिटी कार्ड्स होते हैं उसको ओपन करने के 3 फेजेस होते हैं. पहला फेज होता है फ्लॉप. नाइस. दूसरा फेज होता है टर्न, और आखिरी फेज होता है रिवर. बिजनेस में भी फेजेस होते हैं. एक इंट्रोडक्टरी फेज होता है, फिर एक ग्रोथ फेज होता है, फिर मैच्योरिटी. तो ऐसा कोई पहलू है, ऐसा कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हो?
जब हमने स्टार्ट करा था। इन सारी औरतों ने लाइफ में पहले कभी काम नहीं किया था इसके पहले, तो मैं उनको पहले 2-2 घंटे के लिए बुलाती थी, फिर मैंने उसे 3 घंटा किया, फिर 4 घंटे, ताकि उनको आदत पड़े घर से बाहर जाने की। पहली मुश्किल ये थी कि इनको बिठाओ यहाँ पे, तो वो धीरे धीरे ऐसे टैकल करी थी बिल्कुल शुरुआत में। इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी ह्यूज बिजनेस स्किल कि आप पहले छोटा रिक्वेस्ट करो, फिर धीरे धीरे बड़े रिक्वेस्ट करते जाओ। सो दैट्स व्हाट यू Thank you for educating me. एंड लेट मी टेल यू, फॉर योर फर्स्ट टाइम पोकर, दिस हैंड जो है हमारे सामने, दिस हैज अ 3 ऑफ अ काइंड, इट्स योर 7th हाईएस्ट विनिंग हैंड, and because of that आपको मिलता है टिकट टू द नेशनल पोकर सीरीज 2025. Now this ticket is worth 1 lakh rupees. Wow. It's great and this is hosted on PokerBaazi. And मैं आपको बता दूं, इसका जो प्राइस पूल है ना, it's worth 100 crores. गाइस, स्वाति ने तो अपने स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया वे में यूज किया। अगर आप भी हो अपने स्किल्स और स्ट्रैटेजी के बाजीगर, तो पोकरबाजी पे जाओ, अपना विनिंग हैंड बनाओ, डाउनलोड द ऐप नाउ। Jaqua presents bringing good ideas to life. जो Shark Tank India में pitchers आए हैं, they've got some brilliant ideas, but not only that, they are going to create a huge ripple effect in our society. चाहे new innovations के through कुछ बदलना हो या अपनी skills से local and artist communities को empower करना हो, हर pitcher ने कुछ अलग करके दिखाया है। I know आपने कुछ भी miss नहीं किया है, लेकिन memory को refresh करना चाहिए ना? Yeah? So let's have a look. हम मुंबई से आए हैं एक मिशन लेकर, देश की प्राचीन धरोहरों का जीर्णोद्धार करने का। विक्रम साराभाई लाइब्रेरी जो IIM का हमने रिस्टोर किया है और जिसके लिए यूनेस्को अवार्ड भी मिला हुआ है। अब लगता है कि बॉस अपने कंट्री में एक जोरदार ओपेरा हाउस। विप्रो एक हेल्थ केयर ब्रांड है जिसमें हम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च एंड इनोवेशन द्वारा हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं। आई रियली लाइक यू गाइस, आपने हर चीज में कुछ ना कुछ इनोवेशन किया। आपको हमारे शूज में मधुबनी, कलमकारी, पट्टचित्र जैसे आर्ट फॉर्म्स मिलेंगे, जिसके जरिए हम रीजनल आर्टिस्ट को प्रमोट भी करते हैं और एक सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। Oh, this is good. Very pretty work on mine. AI Gnosis एक AI बेस्ड इकोसिस्टम है जो सिर्फ बच्चों को डिटेक्शन करने पे नहीं रुकता, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन और थेरेपीज भी प्रोवाइड कराता है। गवर्नमेंट से अवार्ड्स मिलने चाहिए अगर ये सॉल्व हो जाए। हम दोनों का विजन यही है यहाँ से, अगर हम लोग इंडिया कल्चर को एक बार थोड़ा सा खंगाल लें तो 100 मार्बल 100 DC आराम से बन जाए। ये गेम चेंजर हो सकता है। पैचअप सिर्फ एक छोटा सा स्टिकर नहीं है, ये एक मिशन है सारे इंडियंस को 0 एडिटिव्स सप्लीमेंट्स देने का। इट फील्स नाइस, फील्स लाइक अ प्रीमियम प्रोडक्ट, अच्छा लग रहा है। तो आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट थोड़ी स्लो है क्या? Am I right or am I wrong? You're wrong. स्पीड है? Yes. मूव करोगे? Yes. ऑफर दूंगा, क्लोज करोगे? Yes. सुन तो लो भाई। स्पीड से डिसीजन देना 60 lakhs 2%. Offer is straight 7.25 crore for 10%. तो 50 lakh ऑफर करती हूँ for 1%, which is Give you what you asked for, 50. I'll also make you an offer. Same offer है। सभी पिक्चर्स ने एक बात तो प्रूव कर दी, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, लाइक Jaqua. Hello everyone, I am Sahiba and welcome to Ask the Shark. We have the founder and CEO of People Group, Anupam. Hi. आपके व्यूअर्स ने आपके लिए क्वेश्चन भेजा है। बताइए। हमारा क्वेश्चन है अक्षत जैन का। He is 28 years old from कोटा। पूछते हैं, अनुपम सर, आपको टैंक में काफी बार बोलते हुए सुना है कि आप एक को फाउंडर रखिए। मुझे जानना था कि आपने कभी को फाउंडर क्यों नहीं रखा? क्या आपको सब कुछ आता है? Honestly, कभी-कभी I miss a co-founder क्योंकि there are certain things you can't tell anyone. और एक co-founder ही समझ पाता है। But अभी जो है वो है, क्योंकि I have become more self-reliant. तो you know I've had to develop every muscle, or I think it's made me stronger. Education has now become lifelong. Technology and business itself इतनी जल्दी change हो रहा है कि if you don't stay on top of it, you will become irrelevant. तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं रहे इंस्टाग्राम पे क्या चलता है, फॉर एग्जाम्पल एज अ ब्रांड मार्केटर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू वेरी क्विकली बिकम इररेलेवेंट, राइट? सो आई थिंक that has become the need of the hour, the call for most people ki you have to stay on the learning cycle.
वेल अक्षता, आई होप कि आपके क्वेश्चन को मिला एक बढ़िया आंसर। अगर आपको भी पूछना है क्वेश्चंस आपके फेवरेट शार्क से, सो डाउनलोड द सोनी लिव ऐप, चूज योर फेवरेट शार्क एंड सेंड देम द क्वेश्चंस। इट कुड बी अनुपम और एनीवन यू लाइक। सी यू एट द नेक्स्ट आस्क द शार्क विद अ न्यू शार्क और एक नया क्वेश्चन। आरबीडी में एग्रीकल्चर मशीनरी में हम इनोवेशन करके किसानों का समय और पैसा दोनों बचाते हैं। ई कॉमर्स मार्केट में मुझे आज बहुत खुशी हुई है ये सुन के कि अब लोग 1.5 लाख का ट्रैक्टर भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ई कॉमर्स इन इंडिया हैज अराइव्ड। पिकलबॉल होता क्या है? इमेजिन करिए शार्क्स एक बैडमिंटन का कोर्ट, टेबल टेनिस के पैडल्स एंड लॉन टेनिस का नेट। ये कॉकटेल है पिकलबॉल। We have a winner. ये हमारा सब चाफ कटर का हाईएस्ट व्यूज 4.5 मिलियन व्यूज वायरल वीडियो है यूट्यूब पे। ये यार 1.1000, 1.1, 347,000। ओ तेरी 4.5 मिलियन, 45 लाख। आप तो हीरो निकले भाई। इन्होंने दादाजी का नाम नहीं, अगर आप ध्यान से देखो इनके हाथ पे इन्होंने लोगो छपवाया है अपनी कंपनी का। अमेजिंग। आरबीडी मेरे दादाजी का नाम है, श्रीमान रामबिलास जी दर्जी। हम सब कजिन साथ पे बैठते थे तो सोचते थे कभी कोई कंपनी हम बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे आरबीडी। देखो भाई, आरबीडी टीम, एक दो बात तो साफ समझ में आ रही है। आप में फाइट है, डेयरिंग भी है और सेल्स तो आप सॉलिड हो ही। तो ह्यूज रिस्पेक्ट, दिल से सलाम बॉस। आपने एमबीए नहीं किया है, लेकिन बड़े बड़े एमबीओ की आप छुट्टी कर देंगे। आपको क्यों लगता है, क्यों नहीं इंडिया में इतना रेजिस्टेंस क्यों है ये सब बिजनेसेस में घुसने के लिए? जिस बिजनेस में अभी आप हैं तो उसमें इतने मोट्स नहीं। आप रहते हैं न्यूयॉर्क में और आपको कॉपी पेस्ट करना है जो यूएस में चलता है इन इंडिया। मुझे वो सबसे बड़ा कंसर्न लग रहा है। कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बड़ी बिजनेस बनाई है, आपका विजन भी बहुत क्लियर है, तो मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ। रितेश, ये साथ में करना है आपको?